is a quick football match by Prime Minister Narendra Modi in Sikkim. Prime Minister Modi is on a two-day visit to Sikkim with a packed schedule combining symbolism and a major development push. Just coming in are some images of PM Modi, who has visited the Orchidarium in Gangtok. Earlier, he was sharing a warm and personal glimpse from Gangtok. Posting on Facebook, the Prime Minister wrote, "Nothing like playing football with my young friends in Sikkim on a lovely Gangtok morning." Right now, Prime Minister Modi is at Orchidarium in Gangtok. He is on a two-day visit to Sikkim. The post, accompanied by cheerful visuals, captured a candid moment of Prime Minister in Sikkim. He is interacting with officials and reviewing the museum in Gangtok. The Prime Minister began the day at the Orchidarium in Gangtok, showcasing Sikkim's rich ecological and floral heritage at the world-class Orchid Experience Centre. The centrepiece of the visit comes at Paljor Stadium, where PM Modi joins the closing ceremony of Sikkim's 50th year of statehood celebration and will unveil projects worth over 4,000 crore rupees across sectors. From infrastructure and connectivity to healthcare, education, power, tourism and agriculture, the visit is being positioned as a major push for holistic development in the Himalayan state. In healthcare, the Prime Minister is laying the foundation stone of a 100-bed Ayurveda hospital at Yangon, while also inaugurating a 30-bed integrated Soa Rigpa hospital in Deorali. Education is another big focus, with the inauguration of the permanent Sikkim University campus, medical and professional colleges, and new residential schools and IT-enabled infrastructure across 160 schools. Connectivity too will get a boost, with major foundation stones for two steel arc bridges over the Tista, a key road upgrade linking Birdang to Namchi, and projects aimed at improving mobility and movement of the goods. And in the power sector, Prime Minister Modi will launch the revamp of Gangtok's transmission and distribution network, aimed at strengthening reliable power supply. So from Sikkim at 50 to 4,000 crore development package, this visit blends celebration with a major infrastructure push. Prime Minister Modi is in Gangtok, Sikkim, and he will unveil developmental project worth rupees 4,000 crore. A big northeast push by Prime Minister Modi. He is there to celebrate the statehood celebration, Sikkim at 50. Prime Minister Modi will participate in the closing ceremony. He received rousing welcome in Sikkim, where he conducted a roadshow. The vibrant culture of Sikkim. Prime Minister Modi also visited an orchidarium in Gangtok, where he talked to officials about this tourism boost in Sikkim. Prime Minister Modi began his day in Sikkim by visiting the Orchidarium in Gangtok, showcasing Sikkim's rich ecological and floral heritage at the world-class Orchid Experience Centre. The centrepiece of the visit comes at Paljor Stadium, where PM Modi will join the closing ceremony of the Sikkim's 50th year of statehood celebration, and he will unveil project worth rupees over 4,000 crore across sectors. From power, education to connectivity, a major boost. Earlier, Prime Minister Narendra Modi shared images of a quick football match with the young girls and boys of Sikkim. Visuals on your screens right now. Posting on Facebook, the Prime Minister wrote, "Nothing like playing some football with my young friends in Sikkim on a lovely Gangtok morning." The post, accompanied by cheerful visuals, captured a candid moment of the Prime Minister interacting with children before the day's official engagements, adding a human touch to a packed visit focused on development and Sikkim's 50th statehood celebrations. ये सत्य संकल्प Live visuals coming in from Sikkim as Prime Minister attends the closing ceremony of the 50 years of Sikkim's statehood celebrations. Earlier in the day, he
played football match with young girls and boys, which he shared on his Facebook. Then he visited an orchidarium which represented Sikkim's rich floral heritage. Major developmental push for Sikkim by Prime Minister Modi. Education, connectivity takes center stage. Prime Minister Modi will now वर्षों की तीव्र प्रगति ने इसे प्रति व्यक्ति आय एवं उपभोग के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के श्रेणी में स्थापित किया है। सिक्किम ने सजगता के साथ एक ऐसा विकास पथ का चयन किया है जो स्थिरता एवं पर्यावरण संतुलन पर आधारित है। जैविक खेती की दिशा में उठाए गए कदम एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी अटल प्रतिबद्धता ने यह सुनिश्चित किया है विकास का मापदंड सदैव पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन पर आधारित होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सिक्किम के जनता के प्रति आपने जो विश्वास प्रकट किया है तथा जिस स्नेह भाव से आपने हमारे राज्य को अपने हृदय में स्थान दिया है, वहां हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक एवं उत्साहवर्धक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके मार्गदर्शन में विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य में सिक्किम अपना सार्थक योगदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज आपका यहाँ उपस्थित होना एक गहन आश्वासन एवं स्वीकृति का प्रतीक है जो यहाँ विश्वास दिलाता है कि सिक्किम आपको प्रिय है, सिक्किम आपके लिए महत्वपूर्ण है, सिक्किम की आवाज सदैव सुनी जाती है और उसकी आकांक्षा भारत की विकास यात्रा के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। प्रत्येक अवसर पर जब मुझे आपके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपने सदैव स्नेह एवं अटूट समर्थन प्रदान किया है। सिक्किम और यहाँ के लोगों को आपने सदैव आत्मीय भाव से अपने संरक्षण में रखा है। आपने लगातार हमारे प्रत्येक चिंताओं का संवेदनशील भाव से समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज संपूर्ण सिक्किम और यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय आपके आशीर्वचनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है। अथवा आपने संबोधन का समाप्त करते हुए मैं निवेदित करना चाहता हूं कि इस स्वर्णिम अवसर पर हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करके एक मार्गदर्शक एवं अभिभावक के रूप में अपने सानिध्य और आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करने के लिए मैं समस्त सिक्किम वासियों की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। आपको सत सत नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम। धन्यवाद। Prime Minister Modi is in Sikkim today. Major focus is healthcare, power, education and connectivity. He began his visit in Sikkim with a powerful road show, a football match and a visit to the orchidarium. Sikkim's rich cultural heritage gets a platform as Prime Minister Modi is all set to unveil projects worth over 4,000 crore rupees in Sikkim, focusing on infrastructure, connectivity, healthcare, education, power, tourism and agriculture. In healthcare, the Prime Minister is laying the foundation stone for a 100-bed Ayurveda hospital at Yangyang, while also inaugurating a 30-bed integrated Sowa Rigpa hospital in Deorali. Education is another big focus with the inauguration of the permanent Sikkim University campus, medical and professional colleges, new residential schools. गौरवशाली यात्रा में केंद्र सरकार के सतत सहयोग और दूरदर्शी नीतियों ने सिक्किम की प्रगति को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। इस विकास यात्रा के साथ सिक्किम ने केवल प्रगति ही नहीं की, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समान रूप से निभाया है। अपनी भौगोलिक संवेदनशीलता के बावजूद देश के सबसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित राज्यों में से एक है।
जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर घर तिरंगा अभियान में राज्य की व्यापक भागीदारी, नागरिकों की गहरी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की सशक्त अभिव्यक्ति है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत और हरित भारत के संकल्प को सिक्किम ने आत्मसात किया है। सिक्किम भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाला एवं खुला में शौच मुक्त राज्य बन चुका है। वर्ष 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सिक्किम को भारत का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया और सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार और आय के नए अवसर प्रदान करते हुए जैविक खेती को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। सिक्किम आज देश का गर्व है। इन 50 वर्षों में सिक्किम प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल बना, बायोडायवर्सिटी का बहुत बड़ा बगीचा बना, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के भावना को आगे बढ़ाते हुए मेरो रुख मेरो संतति पहल के तहत हर पेड़ को संतान समान स्नेह और संरक्षण देकर वृक्षारोपण को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। 1975 में नगण्य बिजली उत्पादन से आज सिक्किम जल विद्युत का पावर हाउस बन चुका है। लगभग 8000 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता के साथ आज सिक्किम देश के प्रमुख ऊर्जा संपन्न राज्यों में से एक है। आज राज्य में 4600 किलोमीटर से अधिक का व्यापक सड़क नेटवर्क विकसित हो चुका है, जो पीएमजीएसवाई जैसी योजनाओं के सहयोग से संभव हुआ है, जिससे दूरस्थ गांव से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर मौसम कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। 2014 में प्रतिवर्ष 5.6 लाख पर्यटकों से बढ़कर 2025 में 17.2 लाख से अधिक पर्यटक सिक्किम पहुंचे, जो एक दशक में 3 गुना वृद्धि को दर्शाता है। बौद्ध सर्किट के अंतर्गत रुमतेक, पेमायांग से ताशीडिंग जैसे प्राचीन मठों को जोड़कर आध्यात्मिक पर्यटन को भी नई पहचान मिली है। 1971 में 17.74% साक्षरता दर से बढ़कर आज 90.8% तक पहुंचना सिक्किम की शिक्षा क्रांति की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के अंतर्गत 47 पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना तथा एनआईटी खामडोंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कंचनजंगा स्टेट यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए हैं। 2014 में शिशु मृत्यु दर 19 से घटकर 2025 में मात्र 5 रह जाना स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर योजना राज्य के प्रत्येक परिवार से एक उद्यमी तैयार करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। इन समग्र विकास प्रयासों के परिणाम स्वरूप सिक्किम आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में सर्वोच्च स्थान पर है। सिक्किम की भौगोलिक संरचना जहां इसे अद्वितीय बनाती है, वहीं प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील भी बनाती है, जिससे कभी-कभी सड़क संपर्क और जनजीवन प्रभावित होता है। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया सहयोग तथा पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के माध्यम से सिक्किम ने हर परिस्थिति में अपनी विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 50 वर्षों की यह यात्रा केंद्र और राज्य के सहयोग की, भारत मां के प्रति समर्पण की और सिक्किम के हर नागरिक के परिश्रम की कहानी है। आपके दूरदर्शी एवं प्रेरणादायी मार्गदर्शन में विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ सिक्किम अपनी प्रकृति, संस्कृति और जनशक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है। धन्यवाद।
अब सिक्किम एवं भारत की संस्कृति मंच पर सजीव होने जा रही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम पर हजारों कलाकार सिक्किम के हर कोने, हर घाटी, हर समुदाय से इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को समर्पित इस भव्य प्रस्तुति का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए।